A very good afternoon to all of you. This is Abhilashan Hata, your social science teacher, and today we are going to continue chapter number 7 of your geography book. Chapter number 7, that is human settlements. Okay, in our last class we have discussed about the settlements, and after that we talk about the transport. Okay, so there are four major means of transport, which are roadways, railways, waterways, and airways. The first one is roadways. So it is the most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. They can be metalled and unmetalled. Metalled, it means pakka road, and unmetalled, it means kacha road. In Hindi we use these terms kacha road and pakka road. Okay, for metalled roads we use the term pakka, and for unmetalled roads we use the term kacha. So there is a picture also given in your book, so just look at the left side of your book, that is figure 7.6, it is metal road, and figure 7.7, it is unmetal road. Okay, so metal road figure 7.6, as you all are aware about this metal road, and we are also very much aware about the unmetal road also. We see so many roads which are like very uneven, and which are not made up of metals. Okay, so just look at figure 7.6 for metal roads, and figure 7.7, it is a picture for unmetal road. Now, the plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrains like deserts, forests, and even high mountains. Manali Leh Highway is the Himalayan mountains is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways or underpaths. Flyovers are built over raised structures. So the plains have a dense network of roads. Dense means thick. ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं रोड्स के आपके प्लेन्स में। जो प्लेन एरिया होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, प्लेन एरिया में आपके पास बहुत से चांसेस होते हैं कि आप बहुत सारे रोड्स बना सको, बिकॉज जो आपकी रोड्स जो आपका एरिया है वो एकदम प्लेन है, अनइवन एरिया नहीं है। जस्ट लाइक माउंटेन्स अनइवन नहीं है ना, तो प्लेन एरिया में रोड्स बनाना इजी है। दैट्स व्हाई द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। ठीक है, डेजर्ट्स में भी बनती है। रोड्स हैव ऑल्सो बिन बिल्ड इन टेरेंस। टेरेंस का मतलब क्या होता है? टेरेंस का मतलब रीजन होता है, एरिया होता है। तो डेजर्ट एरिया में आपका रेगिस्तान का एरिया हो गया, फॉरेस्ट में भी बनता है, और इवन हाई माउंटेन्स में भी क्या है, रोड्स को हम बिल्ड कर सकते हैं। जो मनाली लेह हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स में, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है। ठीक है, एंड रोड्स जो अंडरग्राउंड में बनती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबवेज भी बोलते हैं, या फिर अंडरपाथ्स भी बोल सकते हैं। और कुछ रेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कोई नदी बह रही है नीचे से, उसके ऊपर ब्रिज के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? रोड्स को बिल्ड कर सकते हैं। सो देयर इज अ डू यू नो बॉक्स। There are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. So now there are several national highways and the state highways प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, जो लेटेस्ट आपकी कंस्ट्रक्शन है एक्सप्रेस हाईवेज की, जिसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेट्रो सिटीज है हमारे इंडिया की, फोर मेन मेट्रो सिटीज जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये रोड्स जो है इन चारों स्टेट्स को क्या है, आपस में कनेक्ट करती है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और शेप क्वाड्रिलेटरल शेप लेती है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है। गोल्डन इसलिए बोला है, दीज आर द मेट्रो सिटीज एंड द मेन सिटीज ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई। ठीक है, you are going to read about this golden quadrilateral in your in class 10th. Okay, so now class, next type of transport is रेलवेज। ठीक है, सबने कभी ना कभी आपने रेलवे में सफर किया ही होगा, नहीं किया है तो आपने मूवीज में या अपने आसपास में आपने रेल को देखा ही होगा।
ठीक है. So the railways carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. ओके, अब नाउ देखिए रेलवेज जो है, रेलवेज क्या है आपका, बहुत सारे गुड्स को, हैवी गुड्स को वो कैरी कर सकती है, बहुत सारे लोगों को एक साथ में क्या है अपने ऊपर कैरी कर सकती है वो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में. फॉर एग्जांपल हमें अभी बीकानेर टू चेन्नई जाना है, तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, हम ट्रेन में वो जो लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है, और चीपली भी एज कंपेयर टू एयरवेज, ठीक है, या फिर रोडवेज. हम चीपली रेलवेज में क्या है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे. जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जब क्रांति आई थी, इंडस्ट्रीज का जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो उसने जो रेल ट्रांसपोर्ट की इतनी स्पीडी डेवलपमेंट थी, इतने जल्दी से जो डेवलपमेंट थी, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया था. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन. अब देखो स्टार्टिंग में जब ये टेक्नोलॉजी आई थी रेलवेज की, तो स्टीम इंजन का यूज किया जाता था, बट डीजल ने और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर दिया है. इट मींस जो फ्यूल हम लेते हैं, ठीक है, अब जो रेलवेज में फ्यूल यूज किया जाता है, अब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स के थ्रू हम क्या है रेलवेज और ट्रेन को क्या है चलाते हैं. In places, super fast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. But these are much fewer in number. Indian Railways network is well developed. It is the largest in Asia. Now, जो आपके सब कुछ जगह पे जैसे जापान हो गया, चाइना होगा, वहां पे क्या है सुपर फास्ट ट्रेन्स भी क्या है इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हमारे इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है वैसे. तो जो सुपर फास्ट ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ये जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत रेलवे नेटवर्क होता है, बहुत वेल डेवलप्ड होता है. इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन का अगर आप एरिया देखते हो तो बहुत वेल कनेक्टेड है रेलवे से. वो बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है रेलवे लाइंस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जो डिफिकल्ट टेरेन्स जैसे माउंटेन्स वगैरह में भी क्या कर सकती है, रेलवे लाइंस को वहां पे बना सकती है, ठीक है. रेलवे लाइंस अब आप डिफिकल्ट माउंटेन्स में भी क्या है वहां पे उन्होंने बना दिया है. तो दीज आर फ्यू, ऑल्दो इट इज वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम है, ठीक है, बट फिर भी इंडियन रेलवेज जो है आपका वेल डेवलप्ड है एंड इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया. एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क जो है इंडियन रेलवेज का है. नाउ जस्ट डू यू नो, लुक एट दिस डू यू नो बॉक्स. The train from Zinning to Lhasa runs at the altitude of 4,000 meter above sea level and the highest point is 5,072 मीटर. अब जो ये चाइना में एक ट्रेन है जिंग टू लहासा, ठीक है, कितने 4,000 मीटर अबव सी लेवल पे इसका ऑल्टीट्यूड है, वहां पे ये चलती है और इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, 5,072 मीटर्स पे इसका हाईएस्ट पॉइंट है, वहां तक ये ट्रेन जाती है, ठीक है. Now, one more. The Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in Western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. अब देखिए ये वाला सेंट पीटर्सबर्ग जो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है. सेंट पीटर्सबर्ग जो वेस्टर्न रशिया में है, जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ से लेते हुए देखो कहाँ तक जा रहा है ये आपका पैसिफिक कोस्ट का जो ये व्लादिवोस्टॉक एक जगह का नाम है, यहाँ तक इसने इसको कनेक्ट कर रखा है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक, राइट. Trans-Siberian Railway. Now, next type of transport is waterways. So we have already learned that since early days waterways were used for transportation because it is one of the cheapest transport. Okay, so waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. For example, आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बहुत ऐसे बल्कि सामान, बहुत हैवी सामान अगर भेजना है तो वो जो बल्कि गुड्स है किसके थ्रू जाते हैं, वो रेलवे ये वाटरवेज के थ्रू जाते हैं. और वाटरवेज एज
compared to roadways, railways and airways, they are the cheapest mode of transport. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. Inland मतलब जो आपकी कंट्री के अंदर ही जो सी, ये आपकी नदियां वगैरह बहती है, ठीक है, उसी से हम एक छोटे से डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उनको हम इनलैंड बोलते हैं। और सी रूट्स मतलब जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है, सी समुद्र के थ्रू जाते हैं शिप्स में, उसको क्या बोलते हैं, सी रूट्स बोलते हैं। So, navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Navigable rivers मतलब जिसको हम नेविगेट कर सकते हैं, जिसका, ठीक है, हम पथ प्रदर्शित कर सकते हैं, हमें पता है कि वो इस ये जो रिवर है कहाँ पे कैसे जाएगी, ठीक है। जो नेविगेबल रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो बहुत से लेक्स वगैरह में एज ए टूरिस्ट सी बोटिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो क्या है, ठीक है, एक टाइप का इनलैंड वाटरवे ही है। So some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system. Ganga Brahmaputra में आपका inland waterways है, Great Lakes in North America and the river in Nile in Africa. Nile River, which is the longest river in the world, it has also it also has the inland waterways. गंगा ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में है, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं वहां पे inland waterways का यूज किया जाता है। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. Normally जो sea routes या फिर oceanic routes हैं उसको क्यों यूज किया जाता है, जो merchandise मतलब क्या होता है, जो आप बोल सकते हो कि बिजनेस के पर्पस से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, कि ये ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है सामान, या अमेरिका से आया हुआ है, यूरोप से आया हुआ है, तो वो वहां से सामान जब आता है तो वो शिप्स जो है, सी रूट्स जो है, उसके लिए यूज किए जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये देखो पोर्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, कि जैसे रेलवे का स्टेशन होता है ना, वैसे ही शिप जो वाटरवेज में जो शिप का जो स्टेशन होता है उसको हम पोर्ट्स बोलते हैं। Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. These are some of the important ports of the world. Now, can you name some more parts of the world? ठीक है, just go and explore the names of different ports of the world. Okay, so these are in Asia, Singapore, Mumbai हो गया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो de Janeiro इन साउथ अमेरिका, डरबन, केप टाउन अफ्रीका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। तो these are some of the important sea routes or oceanic routes of the world. Now, next type of mode of transport is airways. Okay, so this is the fastest way of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and disturbing food, water, clothes, and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt, and Cairo. So, airways, which is the fastest mode of transport? Airways is the fastest way of transport, and it is developed in the earliest 20th century. So it is one of the most expensive transport. Why? Because it due to the high cost of fuels. इसमें जो fuels use होते हैं, fuels एक बार में जितना use होता है वो बहुत ज्यादा लगता है और बहुत high cost होती है, इसलिए ये बहुत expensive mode of transport है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली। अब एयर ट्रैफिक कैसे होगा, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी एरोप्लेन्स आपस में आ जाएंगी, भिड़ जाएंगी, वहां पे ट्रैफिक आ जाएगा, नहीं। ये किससे इफेक्ट होता है एयर ट्रैफिक? बैड वेदर हो गया, लाइक फॉग हो गया, स्टॉर्म्स हो गए, तूफान आ गया, ठीक है, धुंध हो गई, तो उससे एयर ट्रैफिक होता है। एंड इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट के एकदम हाइट पे जाना है, तो
इसी थ्रू, एयरवेज के थ्रू ही हम जा सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई तरीका नहीं है। हम रिमोट एरियाज में जहाँ पे रोडवेज के थ्रू या वाटरवेज के थ्रू कनेक्शन नहीं है, वहां पे हम खाली एयरवेज के थ्रू ही जा सकते हैं। एक जब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, ठीक है। अब जैसे अभी कुछ आज से 4-5 साल पहले जो है आपका उत्तराखंड में जो है बहुत बड़ा फ्लड आया था, ठीक है। आपने सुना होगा केदारनाथ, सब पूरा तबाह हो गया था केदारनाथ। वहां पे बहुत बड़ी तबाही आई थी, कैलेमिटी आई थी, फ्लड आया था। तो वहां पे अब लोगों को बहुत लोग उसमें मरे भी थे बेटा, बहुत डेथ हुई थी उसमें। बट जो लोग बच सके थे, उनको किसके थ्रू बचाया था हमने? उसको हमने बचाया था हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो बहुत यूजफुल होते हैं जब इनएक्सेसिबल, जब हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ रोड्स के थ्रू या फिर रेलवेज के थ्रू, या फिर कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आई हुई है कि हम रोड के थ्रू वहां जा नहीं पाते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स जो है बहुत यूज आता है लोगों को रेस्क्यू करने में, मतलब बचाने में, या फिर ऐसे जगह पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में, पानी, कपड़े, मेडिसिन, ये सब पहुंचाने में। और वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो, these are some of the most important airports of the world, in the world. Okay, now next type, next is communication. We talked about the settlements, after that we talked about the transport. Now it is communication. Now what is the meaning of communication? It is the process of conveying message. So with the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. Now, communication. What is communication? It is the process of conveying message. मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। आप मेरी बात सुन पा रहे हो, मैं आपकी बात सुन पा रही हूँ। तो किस वजह से? मैसेजेस को कन्वे करके, आपस में मैसेज को डिलीवर करके। एंड विद द डेवलपमेंट of technology, humans have devised new and fast modes of communication। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने बहुत से ऐसे अलग अलग तरीके के और फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को क्या है, ढूंढ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लेटर्स यूज करते थे, ठीक है, टेलीग्राम्स यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। बट आज के डेट में हम लेटर्स और टेलीग्राम्स तो आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें यूज नहीं करते ना। इंस्टेड हम क्या करते हैं, फोन करते हैं, ईमेल करते हैं। अब 1 सेकंड में हमारा जो ईमेल है चला जाता है। पहले अगर एक लेटर भेजना होता था, ठीक है, बीकानेर से अपन को दिल्ली में भी भेजना होता था, उसको 10 दिन लग जाते थे। पर आज की डेट में अगर हमें बीकानेर से सपोज अमेरिका में भी कोई लेटर भेजना है या कोई मैसेज डिलीवर करना है, तो वो हम फ्यू सेकेंड्स में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। सो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमन बींग्स ने ऐसी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट कर दिया है, ऐसे मोड, फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को इन्वेंट कर दिया है, ठीक है, कि जिससे कि हम कुछ सेकेंड्स में ही अपने मैसेजेस को डिलीवर या अपने अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। अब देखो फिगर 7.10, ये वाला देखो, फिगर 7.10 है। पहले क्या था? अर्ली मेंस थे, ओके। अर्ली मेंस क्या कर रहे हैं? अर्ली मेंस आपस में ही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत कुछ टाइम बाद, कुछ बहुत सालों बाद क्या है, अब देखो पिजन्स के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे सब जो है गांव में, पहले आपने सुना होगा ऐसे, आप कोई माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल आप सीरियल देखते हो तो उसमें देखते हैं ना कि वहां पे पहले संदेश देना होता था, किसी को कोई मैसेज देना होता था तो कैसे किया जाता था, कैसे ढोल बजा के कोई सैनिक आता था और वो सूचना देता था ना। तो पहले ऐसा होता था, पिजन्स के थ्रू सेंड किया जाता था। बट आज की टाइम पे ऐसा तो नहीं होता। फिर कुछ टाइम बाद क्या है, पोस्टमैन होने लग गए, ठीक है, पोस्ट डलने लग गई कि हमें इस जगह भेजना है तो पोस्टमैन डन। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर का इन्वेंशन हुआ, बुक्स का इन्वेंशन हुआ, और आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे जरिया हैं। क्या क्या है? अब देखो, थिएटर्स हैं, ठीक है,
कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, ये प्रिंटर्स हैं, टेलीफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं. वी हैव लाइक वेरियस so many like we have so many modes of communication today, and in just few seconds we deliver messages, right? एंड अब देखो, अब सैटेलाइट, अब हमें स्पेस में भी क्या हो रहा है, हमें उसका भी क्या है, नॉलेज है. अब उसको भी हम पता कर सकते हैं कि स्पेस में क्या हो रहा है आज. क्या कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी हम क्या है, हमें पता चल जाती है कि स्पेस ऐसा दिख रहा है, राइट? So, the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. और जैसे जैसे इस फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में एडवांसमेंट हुई है, इससे हम इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है वर्ल्ड में. ठीक है, एकदम से लोगों को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह हम इन्फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बहन अगर कहीं वर्ल्ड की किसी भी लंदन में रह रही है, आपको कोई मैसेज डिलीवर करना है, आप कर सकते हो. ठीक है, आपको बर्थडे विशेस करने हैं, आप तुरंत फोन करते हो और कर सकते हो. तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो एडवांसमेंट आई है कम्युनिकेशन के फील्ड में, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन लेकर आया है वर्ल्ड में. सो वी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए, आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए. So what are these? To provide information, to educate as well as to entertain. ठीक है, अब खाली कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपस में हमने बात कर ली, दैट इज कम्युनिकेशन. नो, हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रही है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना, मैं आपको बोल रही हूँ तो आप समझ पा रहे हो. ठीक है, आप आपके पास बुक है, आप उसको पढ़ पा रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो ये भी एक जरिया है किसका, कम्युनिकेशन का. ये बुक भी किसी ने लिखी ही है ना, तो उसने हमें एजुकेट करने के लिए, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. इवन ऐसी बुक्स भी, चुटकुले की बुक हो, चुटकुले चुटकुले के मैगजीन्स हो गए, ठीक है, और भी ऐसे नॉवेल्स हो गई, फिक्शनल नॉवेल्स हो गई, स्टोरी नॉवेल्स हो गई, तो वो सब भी क्या है, या फिर आप बोल सकते हो कि थिएटर हो गया, मूवीज हो गई. ठीक है, ये सब हमें एंटरटेन करने के लिए क्या है, हम डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज न्यूज पेपर्स टू गेट टू इन्फॉर्म आवर सेल्फ, टू अपडेट आवर सेल्फ, टू एजुकेट आवर सेल्फ, इवन टू एंटरटेन आवर सेल्फ. ठीक है, गेम्स वेम्स भी आते हैं उसमें, पजल्स एंड ऑल. रेडियोज के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू वी कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कोई क्या है, कोई सूचना देनी है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है हमें. ठीक है, तो अब वो क्या है, विद डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आप इंटरनेट बोल दो या फिर टेलीविजन बोल दो, ठीक है, रेडियो बोल दो, उसके थ्रू क्या है, वो बहुत सारे लोगों को अपनी जो भी वो सूचना दे, इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया. मास मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग. ठीक है, बहुत सारे लोगों को मास बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मास मीडिया. The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. तो देखिए, अब सैटेलाइट्स के होने के वजह से भी हमें सैटेलाइट से बहुत सारी चीजें जो है बहुत फास्टर हो गई है, बहुत चीजों की हमें हेल्प मिली है सैटेलाइट से. ठीक है, सैटेलाइट ने असिस्ट किया है हमें बहुत सारे वेज में. कैसे, हमने ऑयल एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑयल एक्सप्लोर किया है सैटेलाइट्स की हेल्प से. फॉरेस्ट का सर्वे किया है. ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर कितना कहाँ पे कैसा है वो सर्वे किया है. मिनरल्स, मिनरल्स कौन से प्लेस में कौन सा मिनरल है, कहाँ पे है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू किया. इवन वेदर फोरकास्ट की, वेदर कैसा रहने वाला है, वो भी हम क्या, सैटेलाइट्स के थ्रू. आपको क्या लगता है कि 10 दिन, आज से 10 दिन बाद का भी वेदर हमें पता होता है कि कैसा सा रहेगा, या आज शाम को बारिश आएगी, ये हमें थोड़ी नॉलेज हो जाती है. किस वजह से होता है, सैटेलाइट्स की हेल्प की वजह से. ठीक है, और या फिर कभी बोल दिया है कि अर्थक्वेक आने के चांसेस है, साइक्लोन्स आने के चांसेस है, तो ये किस वजह से पता चलता है, सैटेलाइट्स की हेल्प से पता चलता है. सो नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. व्हाट आर दीज ईमेल्स, जो हम ईमेल्स बोलते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मेल्स बोलते हैं. थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल्स भेज सकते हैं. वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे. ठीक है, अब आप सबके पास
फोन मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है। इवन बहुत सारे लोग, आप लोग भी मोबाइल से ही क्लासेस ले रहे हो, तो वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन भी आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो चुका है। इंटरनेट not only provides us with worldwide information and interaction but also has made our lives more comfortable। अब इंटरनेट ने खाली वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कि हम वर्ल्ड में कहीं पे भी हम अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। खाली यही इसी यही प्रोवाइड नहीं है, बट साथ में क्या प्रोवाइड किया है, हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमें किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, हमें बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन हो चुका था। बट ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, ठीक है, जो भी हमें आज की डेट मतलब कुछ जैसे वेजिटेबल्स से लेके आप मिल्क से लेके, ठीक है, कपड़ों से लेके, आपको फोन चाहिए थे पढ़ने के लिए, लैपटॉप चाहिए, हर चीज क्या है, आपको ऑनलाइन मिल रही थी। घर बैठे बैठे सारा सामान मिल रहा था। तो सोचो, इंटरनेट ने हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल बना दी है, ठीक है। अगर वही आज से 20 साल पहले अगर ऐसी सिचुएशन होती जब ये सारी चीजें नहीं थी, तो हम सबके लिए कितना अनकंफर्टेबल हो जाता। हम कैसे अगर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाते, हम कैसे ये सारी चीजें आपस में ले सकते थे, ठीक है। आज के टाइम पे ऑनलाइन होने की वजह से क्या है, हमें बहुत सारी क्या है कंफर्टनेस मिल गई, हमें घर बैठे बैठे चीजें मिल गई, राइट। सो नाउ वी कैन रिजर्व, हमें रेलवेज में अब बहुत लंबी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती टिकट्स को बनाने के लिए। एयरवेज में भी, इवन सिनेमा हॉल, सिनेमा देखने जाते हैं, वहां पे भी नहीं बनानी पड़ती। एंड होटल सिटिंग एट होम, मतलब अब घर पे खाना भी चाहिए तो आप घर पे खाना मंगवा सकते हो। एंड विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services, and institutions across the world, we are a large global city society। और इस इंटरकनेक्टिविटी की वजह से, ठीक है, हम जो कनेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे से वर्ल्ड में, इस इंटरकनेक्टिविटी की वजह से कि हम क्या है, एक ग्लोबल सोसाइटी है। अब देखो वर्ल्ड के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, इसका आपका मैप दिया गया है, तो आप अपने बुक में अच्छे से देखना। देखो, जस्ट लुक एट ये आपका जो डॉट्स दिए हैं वो क्या है, मेजर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, जो जितने भी डॉट्स हैं, ये देखो इंडिया में न्यू दिल्ली दिखाया है, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, ये देखो मुंबई। प्लस जो रेड लाइन से एरोज हैं वो क्या है, एयर रूट्स है। अब देखो लॉस एंजलिस से सेंटियागो, इंडिया से, आपका देखो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया सिडनी हो गया, ठीक है। अब देखो टोक्यो से सिडनी हो गया। तो ऐसे अब देखो ये देखो मॉस्को से आपकी कितनी सारी फ्लाइट्स है, न्यू दिल्ली की है, डायरेक्ट फ्लाइट्स है। तो अब वर्ल्ड की इंटरकनेक्टिविटी देखो, एयरवेज, वाटरवेज, सी रूट्स के थ्रू, एयर रूट्स के थ्रू, इवन मेजर जो रोडवेज के थ्रू भी क्या है, हम क्या है एक अपने इंटरकनेक्टिविटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। और ये जो ब्लू है वो सी रूट्स का बताया गया है, ये जो रूट है, राइट। So please class go through this chapter, and you can ask me any doubt if you have any in my next class, okay? Whenever we will take our next class, I will clear all your doubts. Please go through this chapter very carefully, and take care of yourself. Bye.